formula is in two types. One is vector form, another is Cartesian form. So equation of line passing through a point. So let it be x-axis, let it be y-axis, let it be z-axis. Let there is a line जिसका इक्वेशन मुझे निकालना है and say this point is A and line is passing through a point A and this is O and OA and this vector is A. You know ये A vector A का क्या कहलाता है, कैपिटल A का क्या कहलाता है? OA वेक्टर जो है कैपिटल A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है. ठीक है, तो मुझे लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through a point capital A whose position vector is vector A and whose direction is B vector. ठीक है, सो पूरा मैं लैंग्वेज लिख देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहे. इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point capital A whose position vector is A vector. Pair notebook you have? Pair. Yes. Note temporary. This A vector and which is parallel to B vector is given by R vector equal to A vector plus lambda times B vector. Right, students? Equation of line which is passing through a point capital A whose position vector is vector A and which is parallel to a vector B. The equation is given by R vector equal to A vector plus lambda times B vector. Okay. Yes. So this was vector form. This is vector form. Now the same equation in Cartesian form. In Cartesian form, suppose the point capital A has the coordinates x1, y1, z1. Okay. And let the line passes through capital A, x1, y1, z1. In this chapter, every formula we will give in two manners, one vector form, one Cartesian form. So Cartesian form is कि this is our line जिसका इक्वेशन मुझे लिखना है एंड इस लाइन ये लाइन पास हो रही है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. वेक्टर फॉर्म में इसका पोजीशन वेक्टर दिया था. अभी मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 z1 एंड has direction ratios A, B, C. Then equation is given by this is the equation of line x minus x1 upon A equal to y minus y1 upon B equal to z minus z1 upon C.
ठीक है, करेक्ट रिटन। फिर से बोल रहा हूं कि क्या हमने अभी पहला फॉर्मूला पढ़ा कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि स्ट्रेट लाइन टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। फर्स्ट थिंग इज, फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन, लेट दिस इज आवर लाइन and which passes through a point capital A and is having a direction b vector. So in vector form, what is the formula? R vector equal to A vector plus lambda times b vector. In note in question आपकी 11.2 exercise में question given होगा कि write the equation of line which passes through a point whose position vector is I plus 2j plus 3k and whose direction vector is 3i plus 5j minus 6k. तो आपको A vector given होगा, B vector given होगा, R and lambda will be as it is. So finally your equation will become R vector equal to something I plus something j plus something k plus lambda into some vector. तो ये आपका आंसर है वेक्टर फॉर्म में, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म में। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं क्योंकि इसमें x y z आ गया, वेक्टर नहीं है, वेक्टर्स फॉर्म में वेक्टर आते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और जो डायरेक्शन है उसके बजाय आपको dr गिवन होंगे, डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे। किसके? लाइन के। ठीक है, तो इक्वेशन विल बिकम x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। ठीक है, ये हमने पढ़ा पहला टॉपिक। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जिसमें लाइन पे टू पॉइंट्स गिवन होंगे। राइट द हेडिंग एंड दैट इज सी की वो क्या फॉर्मूला होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इन दिस एक्सरसाइज क्या है कि फॉर्मूला आप लिख लीजिए एंड समझ लीजिए कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। क्वेश्चंस आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वो फॉर्मूला बेस्ड है, बट फॉर्मूला आर वेरी लंबा चौड़ा, वेरी लेंथी एंड समटाइम्स यू आर कंफ्यूज्ड कि इसमें ए का मतलब क्या था, बी का मतलब क्या। तो यू जस्ट लर्न द मीनिंग, राइट इट प्रॉपर्ली, क्वेश्चंस विल बी सिंपल ओनली। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूं। एक एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कीजिए आप नोटबुक में और एक लाइन ड्रॉ कीजिए एंड टू पॉइंट्स ऑन द लाइन यू टेक, let it be A, let it be B, right? And here also I have to write vector form and Cartesian form. So first of all vector form। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा कि लेट इस ए स्मॉल ए वेक्टर को क्या बोलेंगे? कैपिटल ए का क्या? पोजीशन वेक्टर। तो let the position vector of capital A is small a vector and let the position vector, और मैं position vector को short में PV लिख रहा हूँ, let the position vector of A is small a vector and position vector of small capital B point is small b vector. Then equation of this line is r vector equal to a vector plus lambda times b vector minus a vector. Right students? Equation of our desired line is r vector equal to a vector plus lambda times b vector minus a vector. तो A and B are position vector of our given points. Lambda क्या है? Lambda will be any constant, वो as it is रहेगा फाइनल आंसर में। R वेक्टर क्या होगा? R वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जनरल पॉइंट, ये भी जान लीजिए। R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट जानते हैं कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आर वेक्टर की जगह लिखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। मतलब जो नॉर्मल इक्वेशन होता है, जैसे ये इक्वेशन 2x + 3y = 1, ये 2 डायमेंशन में एक लाइन का इक्वेशन है। इसमें x y क्या होता है? जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई भी पॉइंट उस लाइन पे लीजिए और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x y की जगह लिख दीजिए तो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो x y होते हैं जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो जो रोल x y प्ले करता है कार्टेशियन सिस्टम में, वो r वेक्टर प्ले करता है वेक्टर।
तो याद रहेगा। तो अभी तक फिर से रिवाइज करते हैं। अभी तक हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म। द फॉर्मूला वाज r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, जहां पे b था डायरेक्शन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म था x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। दैट वाज फॉर्मूला नंबर 1, टू टाइम्स। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, let 2 points on the line are given whose position vector are vector a and vector b. Then equation of our line is r vector equal to a plus lambda times b minus a. You have to keep remember. Next, it's Cartesian form. Now same figure let us use कि instead of position vector suppose coordinates are given, say x1 y1 z1 and x2 y2 z2. Then you see the previous formula, वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या थी, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। वहां पे a b c क्या थे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। क्या मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आप बता सकते हैं जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करती है? फॉर्मूला है कि दो पॉइंट जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के dr's निकाल सकते हैं। यू नो व्हाट, वेक्टर अलजेब्रा में था x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो बस वो पिछला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, उसमें डिनोमिनेटर्स हटा दीजिए और उनकी जगह लिख दीजिए x2 minus x1, y2 minus y1, z2 लिख दीजिए फॉर्मूला। यू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन सिस्टम इज, सेकंड पार्ट इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म। फिगर पे प्लीज लिख लीजिएगा x1 y1 z1 इसके a के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 z2 b के कोऑर्डिनेट्स। देन आवर लाइन विल बिकम इक्वेशन ऑफ लाइन इज इन कार्टेशियन सिस्टम x minus x1 upon, now dr's will become x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So that you write x2 minus x1 equal to, numerator will be same, y minus y1 upon y2 minus y1 and equal to z minus z1 upon z2 minus z1। ठीक है, तो ये दो हमने फॉर्मूले पढ़े, दैट इज आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू गेट द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, next is angle between two lines. Now before we move toward this topic, एक और बात समझ लेते हैं, छोटी सी है तो उसको लिखेंगे ज्यादा नहीं, बस समझ लेते हैं कि you know how to switch from one form to other form। जैसे आपको वेक्टर फॉर्म दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म पे कैसे लिखेंगे, और कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, देखते हैं इस बार। सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन ये है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इक्वल टू i minus 2j plus 3k plus lambda times 3i plus 5j minus 4k. Can you write its Cartesian form? Cartesian form मतलब x minus x1 upon a equal to, तो कार्टेशियन फॉर्म x y z तो एज इट इज रहेंगे। आपको चाहिए होगा x1 y1 z1, वो क्या होगा 1 minus 2 3। आपको चाहिए होगा पॉइंट थ्रू विच योर लाइन पासेस, तो वो ये देख के मैं पॉइंट बता सकता हूँ 1 minus 2 3। और डिनोमिनेटर में आएंगे dr's, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ योर लाइन। सो यू नो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये डायरेक्शन वेक्टर होता है, तो 3 5 और -4। तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारी लाइन क्या हो जाएगी, x माइनस, कोई मुझे बताएगा कार्टेशियन फॉर्म में हमारी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन r इक्वल्स टू z माइनस। करेक्ट। इसका उल्टा आप खुद ही समझ लीजिए। क्या उल्टा, कि क्वेश्चन गिवन होगा कि देयर इज ए लाइन
which has Cartesian equation x minus 1 upon 3 equal to something. Write its vector equation. So vector equation means r equal to a plus lambda b. r as it is रहेगा, lambda as it is रहेगा. a और b की वैल्यू पुट करनी है. तो a वेक्टर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो. a वेक्टर हो जाएगा i minus 2j plus 3k और b वेक्टर हो जाएगा 3i plus 5j minus 4k और r equal to a plus lambda b लिख दिए. समझ आया कि how you can convert from Cartesian form to vector and conversely. Okay. Now let us write how to get angle between two lines. Suppose there are two lines. Then they have dr a1 b1 c1 and a2 b2 c2. ठीक है, लिख लीजिए कि लेट फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए और इनके बीच कोई थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है. सपोज दिस इज थीटा एंगल. So anyone remembers the formula for cos theta? Two lines, this what was there in vector chapter. So first line has dr, you can write in words if you लिख लीजिए, थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस है. Let first line has dr's, डायरेक्शन रेशियोज को हम शॉर्ट में dr's बोलते हैं. Let first line has dr's a1 b1 c1 and second line has dr's a2 b2 comma c2. Then anyone remembers cos theta formula? Online 3 people have joined only. Nitin, Khushi, Manu. Anyone remembers that cos theta formula? या अभी मेरे सामने जो बच्चे हैं. Yes. किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा? 1 minus tan theta upon 2. In terms of angle between dr. Students. Yes. Cos theta you can write. I can tell you. Cos theta is equal to a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2 whole upon root of what? Their squares and their sum. a1 square plus b1 square plus c1 square. You write it and you think how to keep it remember. Into root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, students. So this is cos theta formula. Correct. Next, suppose it's particular cases. Suppose their lines are perpendicular. Then what will happen? Theta will be some note. 0 हो जाएगा. Cos 90 will be 0. तो equal to 0 करके cross multiply करेंगे तो क्या आएगा? So if lines are perpendicular, then cos theta will be 0. इसके आगे इक्वल टू 0 लिख के अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 is right. Then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. It means that this is the condition to check the two lines are perpendicular. अभी क्वेश्चन 11.2 एक्सरसाइज में इस तरह का है कि one line has dr's 1 2 minus 3 and the other line has dr's minus 3 1 5 something. Check both the lines are perpendicular or not. तो आप क्या करोगे? You'll apply this condition. Their respective dr's you multiply and in between you write plus sign. If it comes 0, they are perpendicular. Otherwise they are not perpendicular. Correct? Next, note condition of. This is also called as condition of perpendicularity. So in bracket you can write condition of perpendicularity. Next is condition of parallelness. Next note is condition of parallelness. That if lines are parallel, then what will happen? Their dr's will be in same ratio. This we have studied from vector algebra chapter also.
that lines are parallel, then suppose first vector is I plus 2j plus 3k, so second vector should be in some multiply of that, like 10i plus 20j plus 30k, like that. So ये dr जो है same ratio में होना चाहिए. Then same ratio means a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2. Correct? So these three formula will help us. Of course, sin theta formula is also there, but that whatever work is possible from that formula, we can complete from cos theta. So I'm not writing just to reduce and make the things easier for us. ठीक है? तो cos theta formula you keep in mind. Formula हो सकता है exactly आपको याद ना रहे, so you learn कि काम कैसे ये करता है ये formula, वो आप ध्यान करना. ठीक है? ये drs के में होंगे तो ऐसा रिस्पेक्टिव drs को मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके लिखना है, और डिनोमिनेटर में रूट ऑफ इनके स्क्वायर्स का सम और इसके स्क्वायर्स का सम, ऐसा. ठीक. परपेंडिकुलरिटी कंडीशन और पैरेललिटी की कंडीशन बेहद इजी है, आप वो भी ध्यान रखो. कंप्लीट. नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज distance between two parallel lines. Write the heading: distance between two parallel lines. Distance between two parallel lines. So let us assume first two parallel lines. Let two parallel lines are in vector form. मुझे कोई बताए कि कैसे मैं assume करूं एक इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे होगी इक्वेशन ऑफ लाइन. r equal to a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. मुझे लेकिन दो लाइंस लिखनी है तो कुछ a1 b1 इस तरह का ले लेते हैं. तो लेट टू पैरेलल लाइंस आर r वेक्टर. r में हम r1 नहीं लिखेंगे, r तो r ही रहेगा. r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा 1 b1 वेक्टर. एंड दूसरी लाइन में क्या लूं, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनमें क्या चीज सेम रहेगी. इस लाइन में ये होता है पॉइंट थ्रू विच आवर लाइन पासेस, और ये होता है डायरेक्शन वेक्टर. तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या सेम होगा, उनका डायरेक्शन वेक्टर b सेम होगा. तो इसमें मैं b1 b2 नहीं लिख रहा हूं, इसमें सिर्फ b. तो लेट आवर फर्स्ट लाइन इज r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा 1 b वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा 2 b वेक्टर. ठीक है. एक फिगर भी मैंने ड्रॉ कर दिया, दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, दोनों ही डायरेक्शन b वेक्टर है, वो लिख दिया मैंने. और पहली लाइन एक पॉइंट कैपिटल A से पास हो रही है, उसका पोजीशन वेक्टर इज a1 एंड द अदर लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर a2. देन अभी पैरेलल लाइंस हैज अ कैरेक्टरिस्टिक कि उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी हमेशा. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. देन डिस्टेंस बिटवीन देम is equal to, we have a formula for this. क्या a2 minus a1. a2 vector and a1 vector will be given in the question, so you have to find a2 minus a1. Then you have to take cross product with b vector. B vector will be given in the question. Then you have to take its magnitude whole upon magnitude of b vector. Correct? Now क्रॉस प्रोडक्ट, आई होप यू रिमेंबर. रिवाइज कर लेते हैं कैसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. कि सपोज i minus j plus 2k, this is my x vector and y vector is 2i minus 3j plus 6k. Can someone tell me what should be x cross y? Suppose one vector is given this, other vector is given, cross product will be determinant. जो लोग नहीं याद है भूल गए वो फिर से ध्यान करते हैं, नो प्रॉब्लम. कि डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी बात करें कैसे डॉट प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट will be first determinant, then first row will be ijk
and second row will be इसके कंपोनेंट 1 minus 1 2 and second next row will be 2 minus 3 और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक वेक्टर आएगा लेकिन डिस्टेंस वेक्टर थोड़ी होगी, डिस्टेंस तो नंबर होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड भी लिया। अभी मैग्नीट्यूड पता है कैसे लेते हैं, आई होप यू रिमेंबर, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। इसका कैपिटल एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से हम शो करते हैं, we write within modulus sign and this will be equal to how much, root of 1 square, like this we find magnitude। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत बेसिक चीज है, चैप्टर 10 में डिस्कस की, ठीक, बहुत छोटी चीज है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर चैप्टर 10 मिस भी हुआ है, इनकम्प्लीशन भी है, तो बहुत छोटी-छोटी चीजें आप तुरंत की तुरंत सीख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये फार्मूला आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज में फार्मूला बेस्ड ही है, बट ये अप्लाई कैसे करना है ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नेक्स्ट हेडिंग, यू राइट डिस्टेंस। अब ये थोड़ा सा समझने वाला चीज है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, SKEW, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। पहले तो ये जानते हैं कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, SKEW, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। Within bracket you write non-coplanar lines, non-coplanar lines, distance between two skew lines। पहले तो ये समझते हैं कि स्क्यू लाइंस होता क्या है। ये सिर्फ 3 डायमेंशन में होता है, 2 डायमेंशन में आप इसको समझ नहीं पाएंगे। 2 डायमेंशन में सिर्फ या तो पैरेलल होती है लाइंस या फिर नहीं, परपेंडिकुलर जरूरी नहीं, इंटरसेक्टिंग, या तो पैरेलल होगी या फिर इंटरसेक्टिंग। 3 डायमेंशन में ऐसा नहीं होता, उसमें एक और वैरायटी होती है कि ऐसी भी लाइंस हो सकती हैं जो ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो ऐसी कोई लाइन जो ना पैरेलल है और ना इंटरसेक्ट? 3 डायमेंशन में ही आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ये एक लाइन है, कैन यू सी दिस वर्टिकल लाइन, ठीक है, and this horizontal line you see, are they parallel? क्या वो पैरेलल है? ठीक है, और इनको मैं कंडेंस कर देता हूँ, पास ले आता हूँ। ये वाली लाइन है और ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये। नाउ आर दे पैरेलल? पैरेलल होगी तो उनके डायरेक्शन सेम होंगे, तो इसमें ऐसे कुछ नहीं। क्या दे आर दे इंटरसेक्टिंग? विल दे इंटरसेक्ट एवर? दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट। आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए और इसको भी ऊपर नीचे प्रोड्यूस कर दीजिए, बट दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट, ठीक है। इस तरह एक ये लाइन है वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है आपको, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी चाहे आप उनको कितना भी प्रोड्यूस कीजिए, और ये पैरेलल भी नहीं है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जरा लिख लीजिए एक लाइन स्क्यू लाइन के बारे में। और इनसे इनको कंटेन करता हुआ कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इनका एक और नाम है नॉन कोप्लेनर लाइंस। आप चाहे कि इन दोनों, ये मान लो 2 वायर्स हैं, आप चाहो कि इन दोनों वायर्स को किसी प्लेन पे हम पूरा इकट्ठा कर दें, तो इट विल नेवर हैपन। तो इनको कंटेन करता हुआ कोई प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए हम इन लाइंस को नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोलते हैं। सो प्लीज राइट, स्क्यू लाइंस आर लाइंस in 3-dimensional space. Skew lines are lines in 3-dimensional space which are neither parallel nor intersecting. Skew lines are lines in 3-dimensional space which are neither parallel nor intersecting. ठीक है, अब वो आप समझ लीजिएगा कि इस तरह से ऐसे लाइन। अब इनके बीच एक डिस्टेंस आपको दिख रही होगी और ये डिस्टेंस फिक्स रहेगी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, ये है क्वेश्चन। तो पहले तो दोनों लाइंस की इक्वेशन दी होनी चाहिए। यू राइट लेट द 2 स्क्यू लाइंस आर, कुछ वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं 2 लाइंस की। लेट द 2 स्क्यू लाइंस आर, वेक्टर इक्वेशन कैसे देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है लाइन की वेक्टर इक्वेशन का? r = a + λb। लेकिन हमें तो 2 लिखनी है, तो
a1 और lambda1 और b1 और a2 b2 वैसे ले लीजिए. Let the two squares are r vector equal to a1 vector plus lambda1 b1 vector and r vector equal to a2 vector plus lambda2 b2 vector. ठीक है, ये मैं इस पे बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता बट सिंबॉलिकली बस ड्रॉ कर रहा हूँ. बोर्ड पे तो ये मिलती हुई इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है जबकि एक्चुअल में ऐसा है नहीं. बस एक सिंबॉलिकली मैंने ड्रॉ किया. इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मुझे निकालनी है. तो यू राइट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज इक्वल टू shortest distance between them is equal to, we have a formula for this. This is given by a2 minus a1 in a bracket dot b1 vector cross b2 vector whole magnitude whole divided by magnitude of b1 vector cross b2 vector. Okay, so in the question you have two equations will be given. आपको a1 vector वहां से निकाल लेना है, a1 vector b1 vector और a2 और b2 और फॉर्मूला है magnitude of a2 minus a1 dot b1 cross b2 whole upon b1 cross b2 whole modulus. क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस डिटरमिनेंट एक्सपेंशन वैसा अभी बात किया था. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पूछ लेता हूं आपसे, आप बताइए. सपोज फर्स्ट वेक्टर इज a वेक्टर इज इक्वल टू i minus 2j plus 3k and b वेक्टर इज इक्वल टू 3i plus 7j minus 5k. कोई मुझे बताए कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा. बहुत छोटी सी चीज है, आप वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा नहीं भी तो है. कैसे मैं क्या लिखूं, वो जो मैं लिखूं वो बता दीजिए. 1 into 3 there will be no I dot I 1 हो जाएगा. तो 1 into 3 ठीक है, सिंपल. साइन के साथ लेना है और कैलकुलेट कर लेना. ये नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए हमने मॉडुलस किया. ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इग्नोर कर देना और डिनोमिनेटर. तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रख लीजिए कि ये काम कैसे करता है. दैट इज नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्रिपल प्रोडक्ट. 1 o'clock होने में 4 minutes और है. सो आफ्टर दैट योर फिजिकल एजुकेशन पीरियड विल बी देयर. सो 4 minutes more. लेट अस कंटिन्यू. नेक्स्ट हेडिंग सब हेडिंग है. अभी मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म पे डिस्कस करें. ट्रिपल प्रोडक्ट. यहां ट्रिपल प्रोडक्ट इस जैसी चीजों को कहते हैं कि डॉट और क्रॉस दोनों आ जाते हैं. 3 वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. यू राइट लेट a वेक्टर इक्वल टू a1i plus a2j plus a3k comma let b vector equal to b1i plus b2j plus b3k and c vector equal to c1i plus c2j plus c3k. Then a vector dot bracket start b vector cross c vector is equal to determinant. फर्स्ट रो में आएगा a वेक्टर के कंपोनेंट्स. a वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या लिखे आपने? कंपोनेंट्स स्केलर a1 a2 a3 वो फर्स्ट रो में आएंगे. सेकेंड रो में इसके कंपोनेंट्स और c1 c2 c3. समझे? नाउ ये कहलाता है ट्रिपल प्रोडक्ट. एक नोट लिख लीजिए कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो रो इंटरचेंज कर दे तो सेम रहता है. दो रो इंटरचेंज 2 बार तो सेम रहता है. यू राइट नोट a वेक्टर डॉट ब्रैकेट स्टार्ट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर ब्रैकेट क्लोज्ड
is equal to b vector dot c cross a is equal to c vector dot a cross b। ठीक है, एक और नोट कि ये जो चीज है ये ऑल्सो डिनोटेड एज बॉक्स एबीसी, वही इसी में नोट में शुरू में लिख लीजिए, बॉक्स एबीसी से भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस मीटिंग को मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा हूँ एंड